Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus. So, students, today we are going to discuss the second part of the last lesson. So, if anyone is newly watching this video lecture, I would like to request them to subscribe this channel and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and relatives. So then, yesterday we have discussed how Franz went out and he wanted to, spend his time or spend that day to outside, but somehow he resisted himself and entered to the school. When he entered to the school, what happened there, we have discussed a little bit. And today we will discuss the rest of things, what happened in the school and in the classroom. So then, let's begin. So already this page we have discussed and yes. So finally what he has seen there. So when he reached, he has seen his teacher, one who was wear a beautiful green coat, his frilled shirt and the little black skill cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो जैसे वो क्लासरूम में पहुंचता है, पहुंचने के बाद बहुत सी चीज़ों को वो देखता है वहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे वो क्लास में पहुँचता है, पहुँचने के बाद अपने टीचर का पहनावा को देखता है, जो क्या पहन रखे, एक ग्रीन कोट पहन रखे हैं, एक सिल्क शर्ट पहन रखे हैं और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो है वो भी पहन रखे हैं, वो सभी एम्ब्रॉयडर्ड हुआ है। तो इस प्रकार का जो ड्रेस है वो कभी कुछ खास दिनों को छोड़ करके वो कभी नहीं पहनते थे। कुछ खास दिन बोले तो जैसे कोई इंस्पेक्शन होता है क्लास में, स्कूल में, ऐसे टाइम पर, या तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे टाइम पर, है ना। तो अक्सर टीचर लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। जब कभी कोई विशेष दिन होता है तभी कुछ कैजुअल ड्रेस वगैरह पहन के आते, नहीं तो नॉर्मली स्कूल का कोई यूनिफॉर्म हो सकता है या तो फिर कोई नॉर्मल ड्रेस पहन करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब टीचर जो है वो एक स्पेशल डे में जो ड्रेस को पहनता है और वही पहन के आया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न। ये पूरा जो स्कूल है अब क्या है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा स्कूल में एक अजीब का माहौल है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली like ourselves, old house with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Okay, need to understand, when he entered to the school, first of all he has seen the different dress of his teacher, that was special dress. And when he has seen all the classroom, that was something different, and all where there is, he became so surprised and he experienced something strange, and something unusual that never or ever happens. So something happened there when he looked back, the back benches which used to empty. But that day, some villagers or village elders, they have seen on that bench, that was something strange for him. Okay, that was something strange for him. तो वहाँ पे जैसे वो क्लास के अंदर आता है तो देखता है कि एक अनयूजुअल ड्रेस है, मतलब टीचर जो स्पेशल दिनों पे पहनता है वही ड्रेस पहना हुआ है,
पर उसको बिल्कुल अजीब लग रहा है। स्कूल का माहौल, क्लासरूम का माहौल जो है सब सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल शांत तरीके से सब बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे की तरफ क्या देखता है कि कुछ गांव के लोग जो एल्डर्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए, जो कि पहले कभी भी नहीं आते थे, जो पहले कभी भी नहीं आते थे। तो उसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स है, जो मैंने पढ़ के आपको बताया, वो सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer throbbed at the edge and he held it up on his knees with its great spectacles laying across the pages। तो ऐसे दूसरे सभी पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और सभी जो है बड़े दुखी दिख रहे हैं, है ना। Those who have sat the beside and the last bench, everybody they looks like very what sad, सभी दुखी दिख रहे हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." थोड़ी देर के बाद जब मुझे पता चलता है कि हो क्या रहा है, मैं कुछ एनक्वायरी करने की कोशिश करता और उसी समय पर मिस्टर एम हैमेल जो है वो अपने चेयर से उठ जाते हैं। उठने के बाद बड़े दुखी और जेंटल टोन में यही कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चों, है ना, आज का जो लेसन है ये आपके लिए लास्ट लेसन होगा। दैट हियर फ्रेंड्स सेज he is supposed to think something, he is supposed to identify something, but before of his identification the teacher Mr. M. Hamel are mounted, okay, he then after mounted his chair and he started to say something that this is the last class, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. मेन रीजन क्या था, लास्ट लेसन होने का कारण यही था क्योंकि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो कल से जो है यहाँ पे जर्मन का टीचर आएगा, जर्मन पढ़ाने वाला टीचर आएगा, है ना, और नया टीचर आएगा। तो आज मैं आपको आखिरी लेसन पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया करके आप अटेंटिव बन जाए। कितने दुख की बात है, जो टीचर 40 साल तक वहाँ पे पढ़ाया था फ्रेंच लैंग्वेज को, आज उसके लिए आखिरी क्लास से जो गांव के लोग उसको देख रहे थे पिछले 40 साल से, ना जाने 2-3 पीढ़ी वहाँ पे पढ़ के जा चुके होंगे, है ना, 2-3 पीढ़ी को वो पढ़ा चुके होंगे, लेकिन आज एक वक्त आता है कि वो स्कूल को छोड़ना, तो अभी भी इसलिए उनको दुख लगता ही होगा। और जब मुझे ये चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यदि काश मैं अगर कहीं 40 साल तक पढ़ाता और मुझे उसको छोड़ने का बारी आता तो मेरे हृदय में क्या विचार होता। तो एनीवे, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। सो अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पुराना वीडियो पड़ा है और उसको आप कंप्लीट इंग्लिश लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। ये तो हिंदी और इंग्लिश से मिक्सिंग लेक्चर है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। व्हाट ए थंडरक्लैप दिस वर्ड वेर टू मी, ये जो शब्द है ये मेरे लिए एक थंडरक्लैप की तरह है। ओ द रचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा,
तो अभी समझ में आ गया कि जो रैचेस है ना, वो टाउन हॉल में जो एक भीड़ खड़ी हुई थी, उसमें से एक बंदा ने जो उसको पीछे से आवाज़ लगा के कहा था, अब उसको समझ में आ गया। नाउ ही अंडरस्टूड द क्राउड ऑफ और द मल्टीट्यूड ऑफ टाउन हॉल and the people they were watching, and among them one fellow, the blacksmith, he shouted behind of him and he said something that already we have discussed. Now he understood about that. अब उसको समझ में आ गया कि रियलिटी में क्या है। My last translation, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. अब ये लड़का भी दुखी हो जाता है कि मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। क्यों? मैं आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा ही तो सीख रहा था लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे और कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग bird's egg or going sliding on the shore. My book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो वो कहता है कि कितने दुख की बात है कि आज मेरे लिए फ्रेंच का लेसन जो है लास्ट होगा हैं, और जैसे जैसे जो बुक्स मेरे लिए भारी लग रहा था है ना, आज मुझे वो बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। आज मुझे वो बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। जिस बुक मेरे लिए एक बर्डन हुआ करता था, जो ग्रामर बुक, जो हिस्ट्री का बुक, ये सब मेरे लिए एक बर्डन हुआ करता था, आज मुझे हल्का लग रहा है। और बड़े दुख की बात है कि अभी अभी तो मैंने थोड़ा सीखा था और मौका अपने हाथ से निकलता जा रहा है। बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है। नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अपॉर्चुनिटी में बी स्लिप्ड एट एनी टाइम। अपॉर्चुनिटीज कभी भी हाथ से जा सकता है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटीज, you must have to use that, because a time may come you have to lose your opportunity and then you will have repentance, but nothing will gain. अपॉर्चुनिटी हाथ में अभी है, अगर उसको सही समय से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। तो जिस समय हाथ पे अपॉर्चुनिटीज होता है उस समय उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा, जिससे फ्रेंच यहाँ पे पछता रहा है। समय होते अगर वो कुछ करता तो आज बहुत कुछ सीख जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी forget all about his ruler and how cranky he was. तो अब ऐसा भी वक्त आएगा, एम हेमेल जो हमें पढ़ा रहे थे वो हमसे छोड़ के चले जाएंगे, है ना। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसका जो रूलर है यानी स्टिक है ना, जिसे वो पीटते थे, वो भी अभी उनको हल्का महसूस होने लग रहा है। यानी उस समय हो सकता है कि टीचर जब हमें डांटता है, टीचर जब हमें पीटता है, और उस समय हम कुछ कड़वाहट का जो मन हमारा अंदर आता है, लेकिन जब टीचर हमें छोड़ के जाता है तो सब कुछ हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। पोर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अभी मुझे समझ में आया कि उसका ये क्लोथ वो क्यों पहना है, और ये जो लोग हैं यहाँ क्यों आए हुए हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम
It was because they were sorry to that they had not gone to school more. क्योंकि ये गांव के लोग अभी पीछे क्यों बैठे हैं, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लोग उस बात को लेकर के दुखी है कि ये भी कई दफ़ा स्कूल में नहीं गए. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was there no more. अभी ये अपने टीचर को रेस्पेक्ट देने के लिए आए हुए हैं. 40 साल की उनकी जो सर्विस है, उस सर्विस के दरमियान उन्होंने जो मेहनत किया है और उसका एक क्या है रेस्पेक्ट देने के लिए, उसका हॉनर देने के लिए वो आए हुए हैं. उस कंट्री जो कंट्री अब दूसरी किसी के अधीन में आ चुका है. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. अब जैसे मैं ये सब सोच रहा था तभी मेरा नाम आ जाता है, और मेरा नाम आता है तो मुझे कुछ रेसिट करने के लिए कहा जाता है. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very loud and clear and without one mistake. तो बड़ी हिम्मत के साथ मैं कुछ कह रहा हूँ बिना गलती से. But I got mixed up on the first word and stood there holding onto my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन थोड़ा सा गलती हो जाता है ना, थोड़ा सा गलती हो जाता है तो उसी के चलते मेरा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी थोड़ा सा गलती हो जाता है. I heard M. Hamel say to me, I want to scold you little friends. You must feel bad enough. तो लेकिन अब टीचर कह रहा है कि लिटिल फ्रेंड्स, मैं आज आपको शाउट करने नहीं जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि पहले मैं बहुत कर चुका हूँ. See how it is every day we have said to ourselves, was I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where you have come out. आप हमेशा यही कहते थे कि मेरे पास बहुत टाइम है ना, मैं कल सीख लूँगा, कल कर लूँगा, लेकिन देखो अभी परिस्थिति क्या हो गया. ओ दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्चिस. अल्चिस के लिए बहुत ही ट्रबल की बात है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. वो हमेशा अपने काम को कल के लिए टाल देता था. नाउ those who follows out this will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. आप कितना दुख की बात है कि आप सभी तो क्या होंगे, फ्रेंच के कहलाए जाएंगे, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज बोलने का, लिखने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होगा. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोर लिटिल फ्रेंच. यू विल हैव ऑल द ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ. लेकिन उनको थोड़ा उत्साह देते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, है ना. अपनी हिम्मत को हमेशा बांध करके रखो, इस प्रकार वो कहते हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न. They are prepared to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. अभी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स जो है तुमको इन चीज़ों में कभी भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, है ना. तुम्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए, फार्म में काम करने के लिए, मिल्स में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए तुम्हें भेजा करते थे. तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे थे. उसके बाद वो अपने बारे में कहते. देन आफ्टर ही सेज अबाउट हिमसेल्फ एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मैं भी इस हद तक दोषी हूँ. क्या है? आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन. कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं फ्लावर्स में पानी डालने के लिए तुम लोग को भेज देता था,
है ना, तुम्हें भेज देता था और इसी के चलते तुम्हारा लेसन भी पढ़ाई नहीं हुआ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब जब तुम फिशिंग करने के लिए चाह रहे थे, है ना, और मैं भी जब जब कभी कभी फिशिंग करने के लिए चाह रहा था और तभी तुम्हें छुट्टी दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when our people are unselfed, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो यहाँ तक कि मैं रोकना चाहता हूँ. Just a little bit I want to remind you, what we learn. अभी एक ऐसे समय पर हम आ चुके हैं कि MML यहाँ पे क्या कर देता है कि डिक्लेयर कर देता है कि भाई कल से ये फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. फ्रॉम टुमारो फ्रेंच लेसन विल बी नॉट टीचिंग ओवर हियर. देन ही सेज दैट वी हैड द टाइम बट वी स्पेंट द टाइम टू डू अदर वर्क इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. He blamed to the person, he blamed to the students. The students, they wanted to earn a little bit of money, and because of that they went to mill, they went to mines, they went to farm, they wanted to go to fishing, and they wanted to do some other work. And because of that reason, they always thinking of tomorrow, but they never thought about today. They always were thinking about tomorrow, but they never thought of today. That was the main reason. And he himself says also that he is also responsible for that, because when he wanted to fishing, he made the school holidays, and most of the time he sent to the students for watering to the flowers or watering to the gardens like this. That is why he gives the responsibility, he gives the responsibility to the students, to the village people. At the same time, he is taking the responsibility to himself also. And finally, he says, French is a very beautiful language in the world. Even we are held by other country, and we have occupied by other, captive by other country. But we should not forget our language. In one word, we can say that we must not forget our culture. We must not forget our culture. The rest of thing tomorrow we will discuss. Thank you. May God bless you. Have a good day.